کہ حضور ملت کی قیادت میں یہ جلوس نکلتا ہے تو مرکزی قیادت وہی فرماتے ہیں. ساتھ میں شہزادے حضور ملت جانشین حضور ملت حضور اظہری سرکار رہتے ہیں اور حضور جیلانی سرکار اور جملہ دارالعلوم فیضان سیدنا کے اسٹاف اور اراکین رہتے ہیں. تمام بچے رہتے ہیں اور جو مرکزی خطاب ہوتا ہے, کلیدی خطاب ہوتا ہے, وہ شہزادے غوث اعظم جگر گوشے سرکار سید الہند قاضی شہر اورنگ آباد حضور امام ملت فرماتے ہیں. تو جو بھی کلمہ گو ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, ان سب کو منانا چاہیے. جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان لوگ کو منانا چاہیے. جو ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کو منانا چاہیے. اور جو ان کی ایمان والے جو نہیں ہیں, کلمہ گو بھی نہیں ہے, لیکن جو ان کی زندگی یا سیرت کو پڑھے ہوئے ہیں, ان سے متاثر ہیں, ان کو بھی اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ نبی رحمت کا جشن ہے, نبی رحمت کا جلوس ہے. تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. السلام علیکم ناظرین. ابھی ہم موجود ہیں دارالعلوم فیضان سیدنا اورنگ آباد میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادے حضور امام ملت حضور بغدادی سرکار. آئیے ان سے جشن عید میلاد النبی کے موقع سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں سے جشن عید میلاد النبی کا جلوس کب نکلتا ہے, کتنا بجے نکلتا ہے؟ الحمدللہ ہر سال شہزادے غوث اعظم جگر گوشے سرکار سید الہند حضور امام ملت قاضی شہر اورنگ آباد حضور علامہ مفتی سید شاہ اصغر امام قادی دامت برکاتہم عالیہ کی قیادت میں ہر سال صبح سویرے تقریباً آپ ہر سال چونکہ موسم بدلتا رہتا ہے تو اس طرح یہ ٹائم ریجڈ تو نہیں ہے, تو فلیکسیبلٹی رکھی جاتی ہے. جیسے جاڑے کا موسم بھی کچھ برسوں پہلے تھا, پھر اس کے بعد ابھی برسات کا موسم چل رہا ہے, بیچ میں گرمی کا موسم تھا, تو لگ بھگ 7 سے 8 کے بیچ آگے پیچھے ہوتا ہے. تو وہ پہلے ہی سے عید میلاد النبی صلی اللہ 1 ربیع الشریف سے جیسے ہی چاند نکلتا ہے, یہاں کی میٹنگ پورے شہر کی حضور امام ملت کی قیادت میں بلائی جاتی ہے, جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ہی وہ جوش طریقے سے پورے شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں. حضور ملت قیادت میں دارالعلوم فیضان سیدنا سے یہ جلوس نکلتا ہے, پھر یہیں آ کے اختتام ہوتا ہے. کہاں تک یہ جلوس جاتا ہے اور کتنی بھیڑ ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عشاق نبی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے موقع پر پورے شہر سے ہزاروں کی تعداد میں, یہاں تک کہ میں کہوں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول اپنے نبی کی یوم ولادت کے موقع پر, کیونکہ یہ تو وہ نبی ہیں جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا. قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے بڑی نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں کہا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے بھیجا ہی نہیں بلکہ اپنے نبی کو رحمت بنا کے تمام عالمین کے لیے. تو میں نبی تو جو میں نبی کو مانتا ہے, جو کلمہ پڑھتا ہے, اس کے بھی نبی ہیں, ان کے لیے بھی رحمت ہے. جو میں نبی کو نہیں مانتا, ان پر ایمان نہیں لاتا, جو ہمارے ملکی بھائی ہیں, ہندوستان کے باشندے ہیں, شہری ہیں, یہ میں نبی کی ہم کلمہ گو ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. تو ہم اپنے نبی کی امت اجابت ہیں, نبی کی امت کے انترگت ہیں, اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہیں. تمام مخلوق نبی کی امت ہے, لیکن ان کو دعوت ابھی تک ملی ہوئی ہے. تو امت دعوت ہم تو تمام امت ہے, تو الحمدللہ پر خلوص کے ساتھ یہ رحمت للعالمین کا جلوس ہے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہلاکوں کا جلوس نکالیں گے تو ہلاکت خیزی ہوگی, اگر چنگیز کا جلوس نکالیں گے چنگیزیت ہوگی. کیوں نہیں اس سال ہر سال کی طرح حضور ملت قیادت میں جلوس محمدی آپ اسی طرح نکالتے ہیں, انشاءاللہ نبی رحمت کے صدقے رحمت 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 ہوگی. کچھ لوگ ہمارے ہی جو ہے کہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو جو ہے کہ نہیں نکالتے ہیں یا اس کو بدعت بولتے ہیں, تو اس کے خیال اس کے تعلق سے کچھ بتائیے. میں تو بس اس کے لیے اتنی ہی بات بولوں گا, کسی کی نبی رحمت کا یہ جشن ہے تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ضرور جلوس نکالتے ہیں, اور جو جلوس کی مخالفت کرتے ہیں, نہیں مناتے ہیں, تو ہم ان کے لیے یہی کہیں گے کہ اللہ انہیں توفیق دے. ورنہ یہ تو ایسا ہے کہ وہ بہت مشہور و معروف شعر کہ نثار تیری چہل پر ہزاروں عید ربیع اول, نثار تیرے چہل پر ہزار عید ربیع اول, سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو بے شک یہ نبی رحمت کا ہے, اور باقی جو مسئلہ مسائل وہ اپنی جگہ ہیں, اور باقی یہ جو بدعت اور باقی چیزیں ہیں یہ سب غلط ہے. بلکہ نبی وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں زندگی ملی, ہمیں ایمان ملا, ہمیں قرآن ملا, یہاں تک کہ ہمیں اللہ کا تعارف ہمارے نبی کے ذریعے ملا. ہمارے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی اللہ کا تعارف فرمایا, آپ کھڑے ہو گئے
और खड़े होकर पहाड़ी फरमाया, ए मक्का वालों, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक काफिला तुम पर हमला करने आ रहा है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोगों ने कहा, या बिल्कुल या मोहम्मद, मैं आपकी बात मानूंगा। अगर आप कहते हैं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक काफिला आ रहा है, अब वो हम पर हमला करने के लिए, तो अगर आप कहते हैं तो हम आपकी बात सच मानेंगे। तो नबी ने फरमाया, तो अगर तुम मुझे इतना सच्चा मानते हो तो ये भी मान लो कि खुदा एक है, उस पर ही मान लो। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने बच्चे का, अपने वालिदैन का, अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो जिस नबी के सदके हमें तमाम मिला, तो इंशाल्लाह उनका भी धूमधाम के साथ जुलूस। हाँ, जहाँ तक इस्लामी तौर तरीके की बात है, रूल रेगुलेशन की बात है, बिल्कुल उसका अमल करना चाहिए, उसमें कोई भी इस तरह की गैर शरई अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जुलूस जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, और जहाँ तक तकलीफ की बात है, वो तो नबी अकरम की पैदाइश पर इब्लीस को भी तकलीफ हुई थी, जोरो कतार रो रहा था। आज भी तकलीफ है, कल भी तकलीफ थी, दोनों की तकलीफ में लेकिन फर्क ये है, इब्लीस रो रो करके गम मना रहा था और आज के लोग अपने बालों को जोरो कतार रो करके गम मना रहा था। आज के लोग कंघी करके गम मनाते हैं या मुखालफत करते हैं। मैं तो बस एक बात बोलता हूँ कि वो हिंदू कैसा जो जन्माष्टमी ना मनाए, जो रामनवमी ना मनाए, वो क्रिश्चियन कैसा जो क्रिसमस सेलिब्रेट ना करे, तो वो मुसलमान कैसा जो ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलिब्रेट ना करे। इस जुलूस में किन किन खतीब का खिताब होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हुज़ूर मिल्लत की क़यादत में ये जुलूस निकलता है, तो मरकज़ी क़यादत वही फरमाते हैं। साथ में शहज़ादे हुज़ूर मिल्लत, जानशीन हुज़ूर मिल्लत हुज़ूर अज़हरी सरकार रहते हैं, और हुज़ूर जिलानी सरकार और जुमला दारुल फैज़ान सैयदना के स्टाफ और अरकान रहते हैं, तमाम बच्चे रहते हैं। और जो मरकज़ी खिताब होता है, कलीदी खिताब होता है, वो शहज़ादे गौसे आज़म जिगर गोशे सरकार सैयदुल हिंद काज़ी शहर औरंगाबाद हुज़ूर इमाम मिल्लत फरमाते हैं। जामा मस्जिद जो सबसे फोकल पॉइंट है, औरंगाबाद का सेंटर पॉइंट है, वहाँ लगभग तकरीबन 10 से 15-20 मिनट उनका खिताब होता है। उसके बाद हुज़ूर अज़हरी सरकार का होता है। और चूंकि ये जुलूस है, तो अगर मौका मिल जाए तो और लोग भी खिताब फरमाते। लेकिन ये खिताब बहुत ही हुज़ूर मिल्लत का जो खिताब होता है जामा मस्जिद, जैसा मैंने कहा सेंटर पॉइंट है वो औरंगाबाद का, तो लाखों हज़ारों की तादाद में लोग खड़े होकर के उनका बयान सुनते हैं। ख़ास तौर पर वहाँ तमाम मीडिया कर्मी भी रहते हैं, प्रेस वाले भी रहते हैं, पुलिस के अरकान भी, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है। और जो लोग आ जा भी रहे होते हैं, वो भी खुद जाम की वजह से नहीं, बल्कि चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन लेकर के जुलूस करते हैं, तो वो ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं, क्योंकि उसके लिए तो वहाँ पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह रहती ही है, बल्कि हुज़ूर इमाम मिल्लत का ऐसा खिताब होता है ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके, वो रुक करके खड़े होकर के वो हुज़ूर मिल्लत के चेहरे को देखती है, और उनका बयान चूँकि आले असूल है, उनके चेहरे पर वो पुर नूर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। जुलूस का इख्तिताम कहाँ होता है? जैसा कि मैंने बताया कि जुलूस दारुल फैज़ान सैयदना ही से निकलता है, जो मरकजी जुलूस होता है, जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वापसी में लगभग 11-12 बजे तक वापस दारुल फैज़ान सैयदना में आकर के हुज़ूर इमाम मिल्लत की दुआओं पर ये ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरखोस और ये स्पेशल प्रोग्राम जुलूस ये ख़त्म होता है। उसके बाद शिन्नी फातिहा होती है, और उसके बाद फिर वो तकसीम होती है, और सब हुज़ूर मिल्लत की दुआएं लेकर के अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की खुशी मनाते हुए अपने अपने घरों को वो खैर बरकत लेकर के लौट जाते हैं। आपके यहाँ इंतजामिया की तरफ से जी, जो ये क्राउड होता है, भीड़ होता है, उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलिस प्रशासन से सबसे पहले तो हम परमिशन लेते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब किबला मुफ्ती अफसर कादी साहब, मोहतरम मौलाना कुद्दूस साहब, और यहाँ के डायरेक्टर जो हैं जानशीन हुज़ूर मिल्लत औलाद गौसे आज़म हुज़ूर अज़हरी सरकार, तो ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रूल को फॉलो करने वाले हैं। हम तो पैगम्बर अमन और शांति के मानने वाले हैं। उनका जुलूस निकालते हैं तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन देकर परमिशन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें परमिशन के बाद मुकम्मल सहयोग होता है। हर चौराहे पर उनकी तरफ से पुलिस कर्मी मौजूद होता है, पुलिस गार्ड मौजूद होते हैं, जो मुकम्मल उस क्राउड को कोई भी बदनज़मी होने का मौका नहीं फराहम करते हैं। और पूरा सुचारू रूप से हमारा जुलूस हुज़ूर मिल्लत की क़यादत में फैज़ान सैयदना ही से निकलता है, फैज़ान पाके ख़त्म होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सहयोग मिलता है हमको पुलिस का। आपके इस जुलूस को मीडिया कवरेज भी लोग करते होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पर बाकी जगहों पर तो मीडिया कवरेज मिलता ही है जुलूस में, चूँकि ये पूरे शहर से गुजरता हुआ जाता है। लेकिन चूँकि मैंने जैसा कहा कि खास कलीदी खिताब हुज़ूर मिल्लत का सदाती खिताब जामा मस्जिद सैयदना जो सेंटर पॉइंट है वहाँ होता है,
तो चूंकि वो चौराहा भी मरकजी जगह पर है, तो उसका कवरेज, उस तकरीर और खिताब का कवरेज और उस मोमेंट का कवरेज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं नेशनल और रीजनल, और उसके अलावा यहाँ जितने भी लोकल चैनल हैं या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हमको जो है कवरेज देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि वैसा खिताब ही हो जाता है और ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे आले रसूल औलाद गौसे आज़म हुज़ूर मिल्लत तक़रीर फरमाते हैं कि लोगों के दिल लाग़िब होते हैं। वो फरमाते हैं कि पैगम्बर अमन व शांति का ये यौम विलादत है, तो वो पैगाम लेकर के आया और तमाम दुनिया के लिए रहमत बन के आया है। तो इस मज़हब में और ना मेरे नबी के लिए उनके दिल में कोई जगह किसी भी तरह की बदनज़मी या दहशतगर्दी की है, तो वो खिताब ही ऐसा आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कवरेज हमें मिलता है। औरंगाबाद के किस किस मोहल्ले से जो है कि आपका जुलूस गुजरता है? सबसे पहले मरकज़ी दस्तगाह दारुल फैज़ान सैयदना औरंगाबाद से तमाम असातिज़ा और तमाम बच्चों हुज़ूर मिल्लत क़यादत में ये सुबह में निकल जाता है। यहाँ से होते हुए पठान टोली, उसके बाद टिकरी मोड़, और टिकरी मोड़ से फिर आगे वो जुलूस बढ़ता हुआ आज़ाद नगर तक जाता है और फिर अली नगर जाता है। फिर वहाँ से वापस आकर के टिकरी मोड़, वहाँ फिर एक खिताब होता है हुज़ूर अज़हरी सरकार का, और उसके बाद फिर पठान टोली, फिर कुरैशी मोहल्ला, फिर वहाँ से जामा मस्जिद, फिर हुज़ूर मिल्लत का खिताब होता है। और जैसे जैसे ये जुलूस बढ़ता है, तो मान लीजिए यहाँ से 1000 लोगों के साथ ये जुलूस निकला, तो समझिए कि वो जामा मस्जिद आते हुए कुरैशी मोहल्ला से जो जामा मस्जिद जाते हैं, हुज़ूर लगभग 10,000 का मजमा वहाँ हो जाता है। फिर वहाँ से हम लोग आपके जो है रमेश चौक की तरफ जाते हैं, वहाँ से फिर रास्ता लेते हुए मदरसा मार्केट की तरफ से मदरसा रोड की तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ से कलब रोड, उसके बाद फिर नावाडी, और फिर नावाडी से फिर अजमेर नगर, अजमेर से मूसा खां मस्जिद, और मूसा खां मस्जिद से वापस फिर ये आपके इस्लाम टोली होते हुए दारुल फैज़ान सैयदना में वापस आता। फिर हुज़ूर मिल्लत के रिक्कत अंगेज़ दुआओं पर जुमला असातिज़ा दारुल फैज़ान सैयदना के मौजूदगी में और शहजादगान हुज़ूर मिल्लत और डायरेक्टर खुसूसन अज़हरी सरकार की मौजूदगी में हुज़ूर मिल्लत के रिक्कत अंगेज़ दुआओं पर यह जुलूस का इख्तिताम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले से हज़ारों सैकड़ों की तादाद में, और यहाँ तक कि हर मोहल्ले के जैसे मैंने कहा कि पैगम्बर रहमत का ये जुलूस है, तो इसीलिए हर मोहल्ले से भी जुलूस लोग निकालते हैं आशिकान रसूल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मरकज़ी जुलूस होता है, हुज़ूर मिल्लत की ऐसी क़यादत है कि चूँकि मीटिंग जैसे मैंने कहा कि पहले ही होती है ये जुलूस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जुलूस मोहल्ले वाले भी निकलते हैं, वो आकर के हमारी जुलूस में शामिल हो जाते हैं और फिर हमारी जुलूस के साथ साथ चलते हैं। तो जो यहाँ 1000 की तादाद में, तो वापस आते जाते वो हज़ारों की तादाद में वो जुलूस बढ़ जाता है यहाँ इख्तिताम होते होते। आखिर में एक सवाल, जश्न ईद मिलादुन नबी किन लोगों को मनाना चाहिए? उसका एक सिंपल जवाब अगर आप एक लफ्ज़ में सुनना चाहेंगे, एक जुमले में सुनना चाहेंगे, तो जो भी कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं, उन सबको मनाना चाहिए। जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं उन लोग को मनाना चाहिए। जो उन पर ईमान रखते हैं उनको मनाना चाहिए। और जो उनकी ईमान वाले जो नहीं है, कलमा गो भी नहीं है, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी या सीरत को पढ़े हुए हैं, उनसे मुतासिर हैं, उनको भी इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये नबी रहमत का जश्न है, नबी रहमत का जुलूस है। तो इंशाअल्लाह उनकी दुआओं से हमारी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह बेहतर होगी। आपके तमाम व्यूवर्स, सैयदना इमाम मिल्लत के व्यूवर्स से कहूँगा कि आपके चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। हुजूर नबी अकरम, हुजूर सरकार गौसे आज़म, हुजूर सरकार सैयदना पाक और पीर मुर्शिद हुजूर मिल्लत के हवाले से तमाम उनकी तक़रीर, उनके शहजादगान की तक़रीर और हमारे मुफ्ती साहब की तक़रीर और जितने भी स्टाफ हैं उनकी तक़रीरें होती हैं, नसीहत आमेज़ वाक़यात होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। तो आपके चैनल सैयदना इमाम मिल्लत के चैनल को तमाम लोग, ख़ुसूसन हुजूर मिल्लत के मुरीदीन, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जी, जज़ाकल्लाह।